So hey everyone, welcome to my new video, and today I am here to just give you a quick glimpse and my opinion on some very popular and hyped up book talk, booktube books which are so popular all over the internet that you just might think at some times like people are just getting money to just talk about them. They are that much popular. So I'm here to share my opinion on them, which is mostly positive, but sometime negative also. So without any delay, let's go. So the first book which I am going to talk is mostly the books belong to this pile are basically thrillers or mysteries, because thrillers and mysteries are just get so hyped up very quickly. So the first book नहीं, पहला author ही बहुत ज़्यादा hyped up, not hyped, over hyped नहीं कहूँगा. It's particularly I want to say it is very accurately hyped up because I loved the book, I loved the author. I loved the author so much that I immediately just bought the next book of her and just read it. And मुझे लगता है कि आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, क्योंकि the book is The Housemaid by Frida McFadden. And this book I listened it on Audible and the experience was so good. I also prefer you कि आप इसे ऑडियो बुक के फॉर्म पे सुने, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस और अच्छा कर सकता है. और बेसिकली नरेशन उसका बहुत अच्छा है. आप रिव्यूज़ भी चेकआउट कर सकते हैं. मुझे कोई पैसे नहीं मिले ऐसा बोलने के लिए, लेकिन सच में नरेशन बहुत अच्छा है. मैंने सुना था, मेरे क्रेडिट्स पड़े हुए थे and it was amazing. Then I got it from Mishu, which I have shared in my book haul, Mishu book haul. If you haven't watched that video, just go and watch it. Just giving you an advice. दिस बुक फॉर मी इज़ अ 5 स्टार. शायद बहुत लोगों को ये नहीं भी लगी 5 स्टार, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा शायद स्मार्ट थे, क्योंकि उन्होंने प्लॉट ट्विस्ट गेस कर लिया था. मैं नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो ऑडियो बुक का एक्सपीरियंस जो मैंने आपको कहा बहुत अच्छा था. एंड नेक्स्ट वही रीज़न है कि अगर आप एक थ्रिलर में प्लॉट ट्विस्ट गेस कर लेते तो आपका एक्सपीरियंस ख़राब कर देता है, बट मैं गेस नहीं कर पाया. सो दैट्स वाई इट्स माई 5 स्टार. A very good book with very good character. Millie, I remember her for all over my life. She is amazing because I'm not opening the door, not yet. If you read the book, you understand it. If you not, just go and read it. Do read it, please. The next book, this is a hit, and then this is the miss for me because I have read this book, not hate it, but not loved it either. And that's the book is, this is also one of the most popular but very mixed kind of author, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बट शायद उनकी बुक्स कब किसी को अच्छी लगती हैं, किसी को कभी अच्छी नहीं लगती हैं. It is also a thriller mystery. It is basically a psychological thriller, which is basically a story of two women. They are just sharing their birthday twins. Basically, they are birthday twins. They are having their birthday on the same date. They are not sisters, but just sharing their birthday on the same date. I think you guessed the book. The book is None of This Is True by Lisa Joel. I was very excited to read this book, but when I read it, I just not like, I feel like very not surface level, I don't want to say because it's not a literary fiction, but मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा. लाइक आई वॉज थिंकिंग कि इसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जब आप उस बुक को पढ़ेंगे, एंड आई वॉज थिंकिंग लाइक ऐसा सब कुछ हो रहा है और उसके बाद भी आप बस ऐसे ही बैठे. लाइक वो एक हॉरर मूवी चल रही है जिसमें आपने बहुत महंगा घर खरीद लिया है, अब उसमें कुछ गड़बड़ भी हो रही तो आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, अरे हमें तो ध्यान ही नहीं देना है. तो कुछ ऐसा मुझे इस बुक में लगा. शायद मेरा ओपिनियन बहुत लोगों को पसंद ना आए, बट मुझे थोड़ा सा, हाँ, डेफिनेटली आई एम नॉट हेटेड द बुक. आई जस्ट लव्ड इट, गिवन इट 4 stars एट दैट टाइम. आई रेड इट ऑलमोस्ट, I think 1 year ago, but not my favorite one, and I may be unhaul it in future. So the next book is again a hit because it was so lovely. The writing style is lyrical, it's so poetical, and it's written in the best way possible. The author is, I just love this book. The book is The Song of Achilles by Madeline Miller. This book, you can see the annotation. If you can see, I have annotated this whole book because this book is just like a wonderful experience. It is an experience for you. I suggest you कि आप इसे binge read करें. ये एक ऐसा experience है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए. अगर आपने इस बुक को, वैसे तो मुझे लगता है पढ़ लिया होगा क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा है और अगर आप सोच रहे हैं इसे पढ़ने का, तो प्लीज़ प्लीज़ जाइए इसे पढ़िए. इट्स वेरी गुड, लाइक ऑन अ लव, रिवेंज, ऑल ऑफ हर साइड. ये बहुत ही अच्छी है. लाइक
आई लव्ड मैडलिन मिलर। और अभी मुझे सरसी है मेरे पास, लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं एक और बुक पढ़ लूँगा तो फिर ख़त्म हो जाएंगी मैडलिन मिलर की मेरे पास बुक्स। सो आई एम जस्ट कीपिंग इट फॉर फ्यूचर, बट आई लव दिस बुक, गिवन इट 6 stars. You can see the annotation, it is more than 5, of course. The next book is again a hit for me after a miss by the same author. It is also one of the most hyped up authors in just this book industry or book world, you can say. And she is very popular. She is an romance author, and the book is Happy Place by Emily Henry. I also talked about Book Lovers, which was a miss for me, a 4 star, but not a very big fan of the romance part of it because I don't like that spiciness of that book and not connected to the characters that much. I just feel like they are just more like surface level, so I don't like that book that much. But for me this book is one of her best work. I दो ही पढ़ेंगे लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स होने वाली है हमेशा, बिकॉज ये उस अपनी लिटरी फिक्शन की साइड पर बहुत अच्छी है। लाइक द बॉन्ड बिटवीन द 6 फ्रेंड्स जो इसमें है ही, ऑफकोर्स स्टोरी, इट्स अ स्टोरी ऑफ कोर्स एक रोमांस है तो 2 लोगों की स्टोरी है जो अपने 4 और दोस्तों के साथ एक बेसिकली वेकेशन पे जाते हैं और उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, जो वो बात अपने दोस्तों से शेयर नहीं करना चाहते। और उसके वैलिड रीजंस मिलेंगे आपको इस बुक में कि आपको ये लगेगा अरे बेपागल हैं, दोस्तों को क्यों नहीं बता रहे हैं, बट आपको उसके वैलिड रीजंस, उनकी वैलिड रिलेशनशिप और उसका ब्रेकअप का भी वैलिड रीज़न मिलेगा, जो एक मुझे इसका बहुत अच्छा पार्ट लगा। और वो दोनों इमोशनली बहुत कनेक्टेड फील होते हैं जो मुझे बुक लवर्स में फील नहीं हुआ था, एंड दैट्स वाई इट इज़ hit for me. It's a 5 star and I love this book. I am very sad because I haven't annotated it क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैंने इसी टाइम पे से लगभग 1.5-2 महीने में ख़त्म किया है किसी तरीके से। लेकिन फिर भी उस पर मत जाइए, बहुत अच्छी 1.5-2 महीने में इसलिए ख़त्म किया क्योंकि इतनी अच्छी थी कि आई वॉज जस्ट रिलैक्सड while reading it. The bond between the 6 characters is amazing. Every side character is just in itself is a main character, अगर आप समझ पा रहे हो तो डेफिनेटली डू रीड दिस बुक। आई थिंक आपको अगर एमिली हेनरी की आपने कोई बुक नहीं पढ़ी है तो आप प्लीज़ इससे स्टार्ट करिए, क्योंकि ये आपको उनकी राइटिंग स्टाइल भी समझा देगी और ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। सो जो अगर आप नहीं पढ़ी है कोई एमिली हेनरी की बुक तो डू रीड दिस बुक। द लास्ट वन इज़ अगेन अ थ्रिलर मिस्ट्री, जैसा कि मैंने कहा था ज़्यादा का थ्रिलर मिस्ट्री होगी। द लास्ट वन इज़ अगेन वेरी पॉपुलर ऑथर, वेरी पॉपुलर सीरीज़, बट अभी मैंने एक ही बुक पढ़ी है उसकी, फर्स्ट बुक। एंड द बुक इज़, अगर आपने गेस नहीं कर पाए होंगे आई थिंक, द बुक इज़ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर। अभी मेरे पास उसकी फिजिकल कॉपी नहीं है, बट दैट बुक वॉज एन एक्सपीरियंस, दैट होल बुक वॉज एन एक्सपीरियंस। लाइक आई रिमेंबर मैंने 1 साल पहले उस बुक को ख़त्म किया था, बट अभी भी मुझे उसके कई सारे सीन्स याद हैं। पिपा एंड रवि, they are just sweetheart and they are just so amazing, that slow burn, that small talks between them and basically that mystery part, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई जस्ट वन जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उसमें जो एंडी का कैरेक्टर, जिसको ऑफकोर्स आप समझ ही जाएंगे, ब्लड पढ़ा होगा या उसमें पहली लाइन लिखी है कि उसी का बेसिकली केस सॉल्व होना है, कोई स्पॉइलर नहीं है, तो उसके मर्डर को वो बहुत ही ज़्यादा लाइक आप एंडी से सच में हेट करते हैं। और वो बुक बहुत अच्छे से तरीके से करती है, अपने कैरेक्टर्स पे बहुत अच्छा काम करती है कि आपको हर कैरेक्टर से कनेक्शन फील होता है। एंड इवन इट्स सम टाइम मुझे तो कई प्लेसेस पे थोड़ा ज़्यादा डार्क नहीं बोलेंगे बट बहुत ही ज़्यादा लाइक थ्रिलिंग भी लगी है और बहुत मज़ेदार थी। द मिस्ट्री पार्ट, द थ्रिलर पार्ट, दैट लेटर्स बिटवीन द chapters and all of that, and emails, I remember some of the details of it, all are amazing. That was 4.5 for me, not a 5, but sometime I think it's a 5 star, but okay, I just want to read the next book which I don't read it yet, but do read that book, do read that series, do read any book by Holly Jackson, because I have read one but I know she's amazing. Just go and read. So that's it for the video. These are some popular books for me. Some are appropriately hyped, like all of them which I have read are almostly good and they are mostly appropriately hyped. I see definitely the potential of none of this is true also, कि लोगों को ये पसंद क्यों आई कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर, बट मुझे मूवीज़ में लाइक
ये अगर आपने दृश्यम देखी है तो ये कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि आप अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट, दृश्यम नहीं शैतान, सॉरी दृश्यम मैंने बोल दिया, शैतान अगर आपने मूवी देखी है तो ये कुछ उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है कि कोई आपके घर में घुस जाता है, बट वो आप जब मूवी में देखते हो तो आपको ज़्यादा थ्रिलिंग लगता है, जो मुझे इसमें उतना थ्रिलिंग नहीं लगा। पता नहीं, शायद मैं इसे अच्छे से नहीं पढ़ा, कभी कभी आपको फोमो होने लगता है कि पता नहीं मुझे क्यों नहीं पसंद आई। But definitely a good book. If you want to give a try of a Lisa Joel book, I suggest you can read this. A very beginner friendly. All of them are beginner friendly. You can read them not as a teenager, because Good Girls Guide to Murder you can read as a teenager. Housemaid and all of these other books you can't read as a teenager, because उनमें कुछ वाइल्ड और ऑफ कोर्स स्पाइस कंटेंट है, अगर वो रोमांस है, और उसमें कुछ थ्रिलर्स में कुछ वाइल्ड कंटेंट है। अगर आप अबव 16 या 18 है तो डेफिनेटली यू कैन रीड दोज बुक्स, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो।